Okay, very good morning to one and all present here. I, Professor Ashwadeep Fuljale, Assistant Professor in the Department of Mechanical Engineering, welcomes you all for the today's lecture of machining process, subject of first semester Mechanical Engineering. My dear friends, we have already started discussing the grinding process, right? As you can see on your screen, we have covered several portions of the grinding machines. In our previous presentation, we observed few grinding machines also, wherein we have discussed the surface grinding, centerless grinding, internal grinding, and other grinding processes. As it is the ancient machining process which was used to sharpen the weapons like swords and knives. The depth of cut is ranging from 50 to 125 microns, and that results into the this process is categorized under the super finishing operation. What makes the grinding different? As the fractional quantity of material is removed, thus it is categorized as super finishing processes, and other super finishing processes like lapping, honing, and other processes we are going to see shortly. Then abrasive particles are mounted onto the surface of grinding wheel, right? As we have seen that we are using one grinding wheel over to which we are mounting the abrasive particles, right? And we have already seen several types of abrasive particles also, and those abrasive particles are also classified as natural and artificial abrasive particles. As on your screen you can see the meshing, the microscopic structure, that is dense, mediumly spacing and open spacing mounting of abrasive particle over grinding wheel. Okay, then we saw the abrasive adhesives, right? We gave an example like in the Sankrant season when you give the layer of abrasives onto the rope for kite, right? So you mount the fine abrasive particle like glass, isn't it? That you all people mount along with the adhesive. Similarly, we are mounting the abrasive particles with the help of some adhesives. Those adhesives are acting as bond in between the uh, grinding wheel and the abrasive particles. Some of the abrasives are mentioned like sandstone, that is nothing but the quartz, corundum, diamond, silicon carbide, aluminum oxide, and CBN are categorized under the artificial one. Then sizing, we have seen the mesh like structure, एक प्रकार की जो जाली होती है उसको हम लोगों ने समझा था. एक स्क्वायर इंच लेंथ में जितने भी होल्स रहेंगे उस जाली में, तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, और उसका भी रेंज 4 to 600 में दिया है. हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया था. 4 to 214 इतने नंबर से अगर एब्रेसिव पार्टिकल पास होता है, उतने मेश से अगर पास होता है, तो हम ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे. और अगर 240 से 600 तक पास होता है, तो हम और भी फाइन मशीनिंग और भी सुपर फिनिशिंग के लिए उन एब्रेसिव पार्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, the screen numbers are given that reflects the grain size, isn't it? The screen number 8 reflects the grain size 8, similarly 24 and the 61. Okay, यानी इतने नंबर के जाली से हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स पास ऑन करते हैं.
फिर हम लोगों ने बॉन्ड्स देखा था, एडेसिव्स देखे थे. Few of them were mentioned like vitrified bond, then silicate bond, right? We have seen their range, capability and their माउंटिंग प्रोसीजर ऑल्सो, वो किस प्रकार से माउंट किया जाता है. ऑलमोस्ट सारे जो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स में हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स को मिलाते हैं और अकॉर्डिंगली हम ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर लेयर चढ़ाते हैं. देन वी सॉ द रबर बॉन्ड, बेकलाइट और रेजिनॉइड बॉन्ड, राइट. फिर हम लोगों ने ग्राइंडिंग व्हील के साइज और शेप्स को ऑब्जर्व किया था. एक स्ट्रेट और स्टैंडर्डाइज्ड ग्राइंडिंग व्हील हम लोगों ने जनरली देखा है, लेकिन उसके अलावा और भी अलग अलग शेप के, अलग अलग डायमेंशन के, साइज़ के ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल में लाए जाते हैं. एंड सर्टेनली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ओनली दे आर बीन मेड. अगर आप कहेंगे कि सर यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्टेड है क्या शेप्स, इनके साइजेस, तो मैं कहूँगा ऑफ कोर्स नॉट. और भी वैरायटी में हम लोग देख सकते हैं. जहाँ कहीं पे भी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट रहेगी हम वो शेप में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. और उनके टिप के एंगल्स भी स्टैंडर्डाइज रखने होते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर आने वाले जितने भी टेपर्स है या फिर कर्वेचर्स है, तो उनका भी एक स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन आप लोग इस स्क्रीन पे देख सकते हैं. एब्रेसिव्स हमने देखा है. इस इमेज को हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी किया था. हार्ड व्हील के लिए हम लोग कौन से टाइप के वर्कपीस को ग्राइंड करने वाले हैं और अकॉर्डिंगली उसका ग्रेड किस प्रकार से होता है. ग्रेडिंग के ऊपर ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा, राइट. स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन स्पेसिंग, डेंस्ड, मीडियम, ओपन स्पेसिंग. फिर हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी, जो एक स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम जो होता है ग्राइंडिंग व्हील का, वो हम लोगों ने स्टडी किया था. ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो कुछ भी नंबरिंग रहता है पर्टिकुलर 7 डिजिट का, 6 to 7 डिजिट का होता है. हर एक डिजिट रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर जो फिज़िकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके लिए भी, और ऑफ कोर्स जो एंड यूज़र है इंडस्ट्रीज़ में उनके लिए भी. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द इंडस्ट्री सिलेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. ओके, तो इसका जो हेडिंग है मैं उसको फटाफट यहाँ पे आपको रिवाइज कराता हूँ. 51A36 L5V23 that represents prefix, abrasive type, abrasive grain size, grade, structure, bond type and the manufacturer's record. इसमें आप इम्पोर्टेंटली देख सकते हैं एब्रेसिव ग्रेन साइज में जो तीसरा कॉलम है, तीसरा नंबरिंग, इसमें कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन यहाँ तक दिया हुआ है. तो ये एक मेशिंग को रिप्रेजेंट करता है जो हम लोगों ने अभी देखा था. देन माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ अ चिप. ऑल्दो वी हैव डिस्कस दैट जो चिप फॉर्म होता है वो डस्ट पार्टिकल की तरह होता है. सॉ डस्ट के सॉइंग करते समय जो डस्ट निकलता है लकड़ी का,
कुछ वैसे शेप का रहेगा और उसका माइक्रोस्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार का वो चिप रहता है। ये थोड़ा सा जो जनरल आप चिप्स देखते हैं उससे थोड़ा सा परे होता है, अलग होता है। नाउ ये एक्चुअल कटिंग प्रोसेस, एक्चुअल मशीनिंग प्रोसेस, राइट। हम लोगों ने इसके पहले के मशीनिंग टेक्निक्स में देखा था, ड्रिलिंग मशीन में देखा है, हम लोगों ने लेथ मशीन में भी ऑब्जर्व किया है कि जो चिप फॉर्म होती है वो विजिबल तो होती है एटलीस्ट, लेकिन ग्राइंडिंग प्रोसेस में वो चिप ऑलमोस्ट विजिबल नहीं होती है। अब चिप का विजिबल होना ये हम लोगों को दर्शाता है कि वो मशीनिंग किस प्रकार से हो रहा है, बराबर है। हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डेप्थ ऑफ कट कितना दिया हुआ है, फीड कितना चल रहा है, सरफेस फिनिश हम लोगों को अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे पैमानों पे हम लोग ये देख सकते हैं कि वो कटिंग किस प्रकार से होता है, लेकिन ग्राइंडिंग एक्शन में ये थोड़ी सी चीज़ अलग रहती है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एक पर्टिकुलर एब्रेसिव पार्टिकल को दिखाया गया है पहली फिगर में, लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर में। अगर आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो पहले इमेज में ये वर्कपीस के कांटेक्ट में आ रहा है। वर्कपीस के कांटेक्ट में आते बराबर जैसे ही लोड हम देते हैं, फील्ड और डेप्थ ऑफ कट देते हैं, तो फ्रिक्शन के वजह से बहुत ही फाइन पार्टिकल एक अलग हो जाएगा वर्कपीस के सरफेस से। जैसे ही आप लोग को ये इमेज में दिख रहा है कि प्रोमिनेंट एक चिप दिख रही है, ये काफ़ी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है यहाँ पे। अदरवाइज इन सेकंड इमेज यू कैन ऑब्जर्व हाउ द मटेरियल इज बीइंग रिमूव, और वो किस प्रकार से होता है, सेपरेट किस प्रकार से होता है, राइट। हम उसके ऊपर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कटिंग एज जो है वो रैंडम शेप का है। जैसे हम लोगों ने ड्रिल बिट देखा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखा, उसके एंगल स्पेसिफाइड रहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड एंगल्स होते हैं उसके ऊपर, लेकिन एब्रेसिव पार्टिकल का वैसा नहीं होता है। ओके, इसमें भी एक अज्यूम किया जाता है कि रेक एंगल 45 डिग्री टू 60 डिग्री में रहेगा। इवन दो आगे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राइंडिंग भी उसके मदद से हम लोग मशीनिंग कर रहे हैं, वो भी तो कभी ना कभी ब्लंट होता होगा। यस ऑफ कोर्स वो भी ब्लंट होता है, लेकिन वो किस प्रकार से रिशार्प किया जाता है या फिर होता है, तो ये हम लोग ऑब्जर्व करें। अब देखिए उसके बाजू वाली इमेज में यहाँ पे दिखाया गया है पर्टिकुलर एक सेक्शन। इसके पीछे, इसके पहले जो हम लोगों ने एक इमेज देखी थी वो एक पर्टिकुलर ग्रेन को दिखाया गया था। अब इस इमेज में हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन को देख रहे हैं, जितना सेक्शन वर्कपीस के कांटेक्ट में आ रहा है और कैसा रप्चर हो रहा है वर्कपीस के सरफेस से, कैसा मटेरियल रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डस्ट। सेंट्रल रीजन में आप देख सकते हैं कैविटी फुल ऑफ चिप्स, एक प्रकार के डस्ट जैसे ही वो अनवांटेड मटेरियल रिमूव करता है। वी विल सी the abbreviations, their nomenclature. Abrasive particle, right? हर एक एब्रेसिव पार्टिकल रैंडम शेप का रहेगा। ओपन कैविटी, वॉइड, ये क्या दर्शाता है? जो हम लोगों ने बॉन्डिंग किया था एडहेसिव्स के माध्यम से, तो आप लोगों ने एक इमेज देखी थी, डेंस, मीडियम और वाइट स्पेस, ये दर्शा रहा है इस इमेज में। देन डार्क रीजन इस इमेज का ये बॉन्ड दिखाता है, इजंट इट? बाइंडर फॉर्मिंग बॉन्ड पोस्ट, राइट। देन नीचे देखिए कैविटी, वो कैविटी इसलिए भी अनवांटेड मटेरियल को निकालने के लिए,
अब ये कैविटी से थोड़ा सा आगे आएंगे तो देखेंगे कि उस कैविटी में प्राइमरीली फील्ड कैविटी है। प्राइमरीली फील्ड कैविटी किससे फिल हुआ है? ये अनवांटेड मटेरियल से फिल हुआ है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कैविटी फुल ऑफ चिप्स। ऑल्दो यहाँ पे चिप दिख रहा है लेकिन वो पार्टिकल्स डस्ट के साइज के ही रहते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है जिसके बदौलत हम लोग समझ सकते हैं कि मशीनिंग किस प्रकार से होता है। राइट।